Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your lecture of Manufacturing Technology 2. So, in the previous series of the lectures, we start another new chapter of Manufacturing Technology 2, which is the plastic technology. And we start the basic introductions about the plastic technologies with the classifications of the plastic. So just in the 5 to 10 minutes we just summarize that things, and we will carry forward these lectures into the brief. So we start the introductions of the plastic technology. A plastic material is any of the wide range of the synthetic or the semi-synthetic organic of solids that are moldables. प्लास्टिक जो है वो एक बेसिकली सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक टाइप का जो है वो एक ऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है जिसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं. द प्लास्टिक्स आर टिपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर मास. प्लास्टिक जो है वो एक तरीके के ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो एक हाई मॉलिक्यूलर मास के साथ जो है वो प्रेजेंस होता है, बट दे आर द ऑफ्टन कंटेंट्स विद द सब्सटेंसेस. बट जो है वो प्लास्टिक जो है वो बेसिकली काफ़ी सारे सब्सटेंसेस के साथ जो है हमें मिलता है. दे आर यूजुअली सिंथेटिक, मोस्ट कॉमनली derived from the petrochemicals, but many are the partially naturals. जो ये प्लास्टिक्स होते हैं वो प्लास्टिक जो है वो कॉमनली जो है वो पेट्रोकेमिकल से जो है वो बनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे पेट्रोकेमिकल से ही बनाए जाते हैं. काफ़ी सारे जो है वो पार्शली नेचुरल जो है वो भी प्लास्टिक्स होते हैं. The synthetic reagents, the synthetic resins is maybe the phenol, uh, former, uh, formaldehydes, cellulose, vinyls, alkyls, etc. The molding compounds are the crystals, filters, catalytes, filters, hardeners, lubricants, pigments, uh, plasticizers, and the solvent, etc. So, the polymerizations. What is the meaning of the polymerizations? The simplest substance which is consist of one primary chemicals are known as the monomers or the monoliths. They are to be compound or to be combined or synthesized to form a polymers by the process which is known as a polymerizations. सो पोलीमराइजेशंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये यहाँ पे जो है वो एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो है एक प्राइमरी केमिकल्स के साथ जो वो हमें पाया जाता है, दैट इज़ दी मोनोमर्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट दी मोनोलिथ्स. वो जो है वो किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है, सिंथेसाइज होने की कोशिश करता है. उस प्रोसेस को जो है वो पोलीमराइजेशन से पहचाना जा सकता है. Now, what is polymers? The word polymer is literally means as a many parts, right? Polymer, right? It's a many parts. A polymeric solid materials is maybe considered as to be one that which is contain a many chemically bonded parts under unit which themselves are bonded together to form a solids. The two industrially important polymeric materials are the plastics and the elastomers. जो इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट पॉलीमरिक मटेरियल्स है वो एक प्लास्टिक्स है और दूसरा इलास्टोमर्स है. द प्लास्टिक्स आर ए लार्ज एंड वेराइड ग्रुप ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल्स which are proposed by forming or molding into the shapes. Just as we have many types of the metals such as aluminum, copper, we have the many types of the plastics such as polyethylenes, neon, etc. Now, the plastics can be divided into the two classes. The first, which is the thermoplastics, and the second, which is the thermosetting plastics, which is depending upon how they are स्ट्रक्चरली केमिकली बॉन्डेड. ये जो दोनों क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक्स के फर्स्ट हो गया आपका प्लास्टिक
थर्मोप्लास्टिक और सेकेंड विच इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसका क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसे है और उसका केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस कैसे, उसके ऊपर जो है इसका क्लासिफिकेशन होता है. नाउ द थर्मोप्लास्टिक्स. द थर्मोप्लास्टिक्स, these plastics can be softened by the heatings and the hardened by heating and hardened by cooling any number of times without changing the properties of the materials. With thermoplastics, these plastics can be softened by heatings and hardened by cooling any number of times without changing the properties of the material. It is thus possible to shape and reshape this plastic by the means of heating and the pressure. यानी इस टाइप के प्लास्टिक जो है वो उसको हम लोग सॉफ्ट और कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग्स एंड उसको हार्डनेट बना सकते हैं बाय द कूलिंग विद द नंबर ऑफ टाइम, राइट. हम लोग इसको नंबर ऑफ टाइम जो है ये प्रोसेस करके उसको डिफरेंट शेप के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस variety of the plastic is that a scrap which is obtained from the old and wrap out the articles can be effectively used again. यानी इस प्रोसेस का इस टाइप के प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एक टाइप से वही एडवांटेज है कि इस तरीके के प्लास्टिक को यूज़ करके जो है वो बार बार यूज़ करके उसके स्क्रैप को यूज़ करके उसको अलग अलग एंटिटीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इस प्लास्टिक के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जाती है? They are softens and liquefies on the heatings and hard ups by the cooling. इसको सॉफ्ट किया जा सकता है हीटिंग से और हार्ड किया जा सकता है कूलिंग से. रिटेन द शेप आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो जो शेप है उसको रिटेन कर लेते हैं. विच इज़ सूटेबल फॉर द रिसाइकलिंग, कैन बी रीशेप्स बाय द हीटिंग. इट मे बी मेल्ट बिफोर passing to a gaseous states, allow the plastic deformations when it is heated. They are soluble in the certain solvents and swell in the presence of the certain solvents. So the examples and the applications of the thermoplastics materials: a high pressures polyethyl as applied to the rigid materials which is covered with the electrical machines, which is the tube, etc. Now the second, which is a low pressures polyethylene elastic materials which is used for the insulations, electric cables, etc. Then the polystyrene which is applied for electrical insulations, handles of the tools, etc. Now polamides are used for making the ropes, belts, etc. Now the PVC or a polyvinyl chlorides for the manufacturing of the insulation materials, pipes, कंटेनर्स एक्सेट्रा. यानी इस यानी ये थर्मोप्लास्टिक के जो है इसके अंदर इस कैटेगरीज में इस 5 टाइप के जो है प्लास्टिक्स आते हैं जिसके कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए, राइट. फर्स्ट हो गया पॉलीइथिलीन, सेकंड बोला पॉलीइथिलीन इलास्टिक मटेरियल्स, देन द पॉलीस्टायरीन, देन द पोलामाइड्स, देन द पीवीसी. द एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव, इसके एडहेसिव कौन से हैं? देन द एक्रेलेट्स आप सभी ने सुना होगा, राइट. देन द नाइक्रोनेट्स, देन द इपोक्सी क्यूब्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, देन एक्रेलेट्स cured by the ultraviolet radiations. So these are the adhesive or some kind of the bonding procedures of the thermoplastic materials. Now the thermoplastic materials. The first, which is the PVC, which is the polyvinyl chloride. उसके पास क्या properties होती है? They are rigid, tough, elastic to the feel. Now use. We can use it for the plumbings of the pipelines. Sanitary fittings are the manufactured out of these materials. Then the showers containers, windows frames, floorings, corrugated roughing sheets, plastic coatings to sheet metal tanks, and the water centers are manufactured with the PVC. Now the second, which is the acrylic. The acrylic which has a properties which has a glass clear, वो जो है वो glass जैसा clear होता है. Some
what which is the brittle sound when which is the tapped, and how we can use it. We can use it for the glazing and the bathroom and the sinks fittings. इसका जो है वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो है वो बाथरूम के अंदर, ग्लेजिंग्स के अंदर, बाथरूम के सिंक्स के अंदर जो है वो होता है. द थर्ड विच इज़ दी polyethylenes और द polyethylene which is the low density. इसके अंदर low densities होती है. The property which is it is very flexible kind of the plastics and we can feel like the paraffin wax. जो wax होता है ना मीन, इस तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? उसको यूज़ जो है होता है बॉटल वगैरह बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए, शीटिंग्स वाटर टैंक्स बनाने के लिए इसका यूज़ जो है वो होता है. नाउ द polyethylene और द पोलीथाइन्स विच इज़ द हाई डेंसिटी. अब ऐसा कि जिसके अंदर हाई डेंसिटी है, सो इसके पास क्या प्रॉपर्टीज़ है? दे आर द स्टिफ एंड हार्ड, वो स्टिफ एंड हार्ड होता है. देन द कोर्सियर दैन द polyethylenes with of the low density which is used as a large storage tank bottles or the water tank. Now the fifth which is the polypropylene. polypropylene कैसा होता है? Now the use, the properties, इसकी क्या properties होती है? They are the smooth, lightest type of the, all the plastics. It float in the water, वो पानी के ऊपर तैरता है. इसका यूज़ कैसे होता है? देन इसका यूज़ बेसिकली जो है वो सेंटर्स के अंदर, शिंक के ट्रैप्स के अंदर, वॉशिंग मशीन के बीड्स के अंदर, फूड कंटेनर्स के अंदर, इसका जो है कार के फिंडर्स के अंदर जो है इसका एप्लीकेशंस जो है उसका पोलीप्रोपेलाइन का जो है पोलीप्रोपेलाइन का जो है वो एप्लीकेशंस यहाँ पे होता है. नाउ द सिक्स्थ विच इज़ दी पोलीस्टेरीन. नाउ पोलीस्टेरीन जो है वो कैसा होता है? दे आर द सॉलिड और some can as a glassy state at the room temperatures but flow if heated above its the glass transitions temperature. वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लो हो सकता है जब उसको जो है हम लोग उसके ग्लास ट्रांजिशंस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लोग उसको हीट करें, एंड बिकमिंग अ सॉलिड अगेन व्हेन इट इज़ कूल ऑफ. ए प्योर सॉलिड polystyrene is a colorless hard plastics with a limited flexibilities. A polystyrene can be transparent or can be made to take up on the various colors. अब इसका यूज़ कैसे होता है? तो इसका बेसिकली यूज़ जो है वो रेफ्रिजरेटर के कंटेनर्स बनाने के लिए, फूड के ट्रेज बनाने के लिए, पैकेजिंग बनाने के लिए, फूड कंटेनर्स बनाने के लिए, डिस्पोजेबल कप हो गए, प्लेट्स हो गए, कटलरीज हो गई, सीडीज़, राइट, सीडी ड्राइव्स जो है वो बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट ड्राइव्स बनाने के, कैसेट्स के जो बॉक्सेस है वो बनाने के लिए जो है वो पोलीस्टायरीन जो है वो यूज़ होता है. नाउ द सेवंथ विच इज़ द नाइलॉन. अब नाइलॉन कैसा होता है? उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? द नाइलॉन हैज़ ए हाई डेंसिटी पोलीथाइलिन बट हैज़ अ स्मूथर टू फिल. वो जो है उसके पास हाई डेंसिटी होती है पर अगर हम लोग उसको फील करें तो एकदम स्मूथ जो है वो दिखता है. अब नायलॉन जो है वो सभी ने सुना होगा कि उसका जो बेसिकली एप्लीकेशंस है वो टेक्सटाइल या फिर रोप के जो रस्से के जो है वो थ्रेड्स बनाने के लिए काफ़ी सारा यूज़ होता है. टेक्सटाइल, देन द ब्रशेस, ब्रिस्टल्स, कारपेटिंग्स, सर्जिकल ट्रेज, बैरिंग्स, प्लास्टिक ट्यूब्स, वो बनाने के लिए जो है वो नायलॉन जो है वो यूज़ होता है. नाउ वी कैन स्टार्ट द सेकेंड काइंड ऑफ द कैटेगरीज विच इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे होता है? दिस प्लास्टिक्स आर आइदर ओरिजिनली सॉफ्ट और अ लिक्विड और दे आर सॉफ्टन वंस अपॉन द हीटिंग. ये इस तरीके के जो प्लास्टिक्स होते हैं वो ओरिजिनली काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और एक तरीके के सॉफ्ट होते हैं व्हेन विच इज़ एक तरीके से जैसे हम लोग उसको अगर बार बार उसको हीट करेंगे, अगर सेकेंड टाइम उसको हीट करेंगे तो वो फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे एंड दे हार्डन परमानेंटली. वो जो है वो परमानेंटली जो है वो फिर हार्ड हो जाएगा. फिर उसके बाद एक बार उसको हीट करके सॉफ्ट किया और जैसे वो कूल हो गया तो एक बार जब फिर से वो हार्ड हो जाएगा
उसके बाद उसको रीशेपन जो है वो नहीं कर सकते। इस तरीके के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो बोला जा सकता है। व्हेन दे आर हीटेड इन द टेम्परेचर ऑफ द 127 डिग्री सेंटीग्रेड्स टू 177, 127 से लेके 177 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको हीट किया जा सकता, हीट करते हुए सेट परमानेंटली, वो जो है वो परमानेंटली उस टेम्परेचर के ऊपर सेट हो जाए। एंड द फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ द हीट डज नॉट अल्टर देयर फॉर्म ऑफ द सॉफ्टर देन। अब उसके बाद उसको सॉफ्ट करके उसको एक एप्लीकेशंस के लिए आपने उसको डेवलप कर दिया, उसके बाद उसके अंदर चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता है। बट एट द टेम्परेचर ऑफ दी 343 डिग्री 343 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दी चैरिंग विच इज अकर, उसके अंदर चैरिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दी ड्यूरेबल, वो काफ़ी ड्यूरेबल प्लास्टिक होता है, आप उसको थोड़ा रफ एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। देन दे आर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं, राइट। नाउ दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ द ब्यूटीफुल कलर्स। थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ कलर के अंदर अवेलेबल होते हैं। देन दे आर मेनली यूज्ड इन द इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ द प्लास्टिक, ये जो है वो काफ़ी सारे इसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर क्या क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती है। सो दे आर परमानेंटली हार्ड ऑन हीटिंग विच इज़ अबव द सर्टेन टेम्परेचर। एक बार वो सर्टेन टेम्परेचर लिमिट के ऊपर आपने हीट किया तो वो एक बार जैसे ही हार्ड हो जाएगा तो वो परमानेंटली हार्ड हो जाएगा। अंडरगोज अ केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस जो है वो डेवलप्ड होते हैं। कैन नॉट बी मेल्टेड एंड दी रीशार्पन्स, उसको रीशेप जो है वो नहीं किया जा सकता हीट करके। एंड दे हैव अ लिटिल पोटेंशियल्स फॉर दी रिसाइकलिंग, इसके अंदर जो है वो काफ़ी कम जो है वो पोटेंशियल्स है जिसको हम लोग रीशार्पन कर सकते हैं। नाउ some kind of its examples and its uses, right? So we start with the first example, which is the polyester, the fiberglass system, polyester fiberglass system, sheet molding compounds and a bulk molding compounds का यूज़ होता है इसके अंदर। इसके पहले टाइप का जो एग्जाम्पल है इस टाइप के प्लास्टिक का, विच इज़ द पोलिएस्टर ग्लास फाइबर सिस्टम। नाउ सेकेंड, विच इज़ द पोलीइथेन्स। So they are used for the insulating foams, matrices, coatings, adhesives, कार के पार्ट्स हो गए, प्रिंट रोलर्स हो गए, शू शोल्स हो गए, फ्लोरिंग्स, synthetic fibers, etc. Now the polyethylene polymers are formed by combining the two by or higher functionals monomers or the obligators. Now third, which is the vulcanized rubber. वल्कनाइज्ड रबर जो है वो भी एक तरीके के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो होते हैं। नाउ बैकेलाइट्स का नाम आपने सुना होगा। ए फिनाइल formaldehydes resin is used in the electrical insulators and the plastic wares. Now यूरिया, अब जो यूरिया जो है वो डिनाइल जो है फॉर्माल्डिहाइड विच इज़ फॉर्म टू यूज़ दी प्लाईवुड्स, वो जो है वो प्लाईवुड्स जो है वो फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। देन द पार्टिकल बोर्ड्स एंड अ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स। देन द मेलामाइन रेजिन्स विच इज़ यूज्ड ऑन दी वर्कशॉप सरफेस, वर्कशॉप के जो सरफेसेस होती है वो जो है वो मेलामाइन रेजिन्स से जो है वो डेवलप किया जा सकता है। लास्ट विच इज़ द इपॉक्सी रेजिन्स विच इज़ यूज्ड एज ए मैट्रिक्स कंपाउंड्स इन मैनी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक सच एज ए ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक्स एंड दी ग्रेफाइट रेनफोर्स प्लास्टिक्स। सो यहाँ पे जो है वो इपॉक्सी रेजिन्स जो है वो यूज़ होता है as a matrix compounds in many fiber reinforced plastics such as a glass reinforced plastics and the graphite reinforced plastics. Now the thermosetting plastics जो है उसके कुछ categories. तो first which is the melamine
formaldehydes, which is the formica. They have the property which is the hardest kind of the common kind of the plastics, and they are the heat resistance. ये जो है मेलामाइन वो एक तरीके के हार्डेस्ट टाइप ऑफ द प्लास्टिक्स है, कॉमन प्लास्टिक्स है. दे आर द हीट रेजिस्टेंस. इसके ऊपर जो है वो काफ़ी हीट की हीट वो काफ़ी तरीके से हीट को रेजिस्ट कर सकता है, और हीट की जो है वो इफ़ेक्ट बहुत कम होती है. देन द फिनोलेक्स और वी कैन से एज अ बैकेलाइट्स. इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? तो एक तरीके इससे ये जो है वो चीपेस्ट काइंड ऑफ द प्लास्टिक्स हैं. दे आर हैवी एंड ए सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल, वो काफ़ी हैवी है और सॉलिड तरीके का प्लास्टिक्स है. देन ए फिशी स्मेल. इसके अंदर जो है एक तरीके से फिशी तरीके की स्मेल, जैसे मछली जैसी जो है वो स्मेल जो है इस बैकेलाइट से आती है. व्हेन विच इज़ बर्न डार्क, वो इसको हम लोग जब जलाते हैं ना तब वो जैसे ब्लैक हो जाता है. तो बैकेलाइट जो है वो अगर हमने जलाए तो एक तरीके से इसके अंदर जैसे एक तरीके से जो मछली वाली जो स्मेल होती है ना, ऐसी स्मेल जो है वो इसके अंदर डार्क कलर के अंदर ब्लैक जब हो जाता है तब उसको आती है. राइट. ये आपने काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी. देन ये जो है वो भी एक तरीके के हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक है, वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है ना. इसके यूज़ कैसे होता है? आपके घर के अंदर जो प्लास्टिक के बॉटल्स रखे हुए हैं, प्लास्टिक के बॉटल के जो ढक्कन रखे हुए हैं, प्लास्टिक ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स हैं, राइट. देन द बॉन्डिंग आपके प्लाईवुड्स रहते हैं, जो प्लाईवुड्स को आप जलाओगे तो फिर ऐसी ही चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी. देन जो चिप बर्ड्स, ग्लूज, laminates, other materials, they are the kind of the backlights materials. Now the third which is the Urma formaldehydes. Now उसके अंदर जो properties रहती है which is similar to the phenolics but can be produced in the lighter color. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो बैकलाइट जैसी ही रहती है, पर वो लाइटर यानी लाइट कलर के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ यूज़ कैसा होता है? तो डोर के जो फर्नीचर्स हो गए उसके अंदर इसका यूज़ हो गया. फिर लाइट के स्विचेस है तो वो जो है वो यूरिया फॉर्माडाइल से प्रोड्यूस होते हैं. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ग्लूज, बॉटम्स, देन द रेडियो कैबिनेट्स, they are produced from the urea formadiles. Now the fourth which is the epoxies. अब epoxies जो है वो भी एक तरीके के प्लास्टिक्स है. इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? दे आर द रेजिन्स एंड दी हार्डनर्स. ये एक तरीके के रेजिन्स एंड हार्डनर्स हैं विच इज़ यूज्ड एज ए एडहेसिव्स. ये जो है वो एक तरीके के एडहेसिव के फॉर्म्स में ये यूज्ड होते हैं. नेक्स्ट विच इज़ द पोलिएस्टर्स. They have the properties like the fibers and the films which is used as a reinforced plastics, Now the classifications which is according to the structures of the atoms. अगर इसका हम लोग क्लासिफिकेशंस करें तो एक तो क्लासिफिकेशंस था हमारे पास थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक. अब जो हम लोग क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स. इसके जो एटम्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल एटम, उसके हिसाब से अगर क्लासिफिकेशंस करें तो विच इज़ द होमोजीनियस प्लास्टिक. एक जो प्लास्टिक होता है वो होमोजीनियस प्लास्टिक होता है. इन दिस वेराइटीज़ ऑफ द प्लास्टिक विच इज़ कंटेन द कार्बन चेन्स. राइट. इसके अंदर जो है इस टाइप के प्लास्टिक के अंदर एक कार्बन चेन जो है वो पाया जाता है. द प्लास्टिक ऑफ दिस ग्रुप्स आर कंपोज्ड ऑफ द कार्बन एटम्स. इसके अंदर जो है वो कार्बन एटम्स से जो है कंपोज्ड किए हुए आपको पाते हैं ओनली, एंड द एग्जिबिट्स दी होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स. जो है वो एक तरीके के होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो हमें पाए जा सकते हैं. नाउ द सेकेंड विच इज़ द हेट्रोजियस स्ट्रक्चर्स. अब जो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं? द वेराइटी ऑफ द प्लास्टिक इज कंपोज्ड ऑफ द चेन विच इज़ कंटेनिंग अ कार्बन एंड ऑक्सीजन्स, द नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स, एंड द एग्जिबिट्स दी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर. वो जो है वो एक तरीके के हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो पाए जा सकते हैं. नाउ द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक. अब प्लास्टिक के अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जा सकती है, उसके मैकेनिकल और फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स. प्लास्टिक जो है वो 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड्स होते हैं. द फर्स्ट विच इज़ द रिजिड प्लास्टिक्स, semi-rigid plastics, soft plastics and elastomers.
सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक, दिस प्लास्टिक्स हैव ए हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। रिजिड प्लास्टिक के अंदर जो है हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहती है। दे रिटेन्स देयर शेप्स अंडर द एक्सटीरियर स्ट्रेसेस। वो जो है वो एक्सटीरियर स्ट्रेसेस के ऊपर जो है वो अपना शेप जो है वो रिगेन कर सकते, रिटेन रख सकते हैं, विच इज अप्लाइड एट द नॉर्मल एंड द moderately and increase the temperatures. Now the second, which is the semi rigid kind of the plastic. Semi rigid type of plastic क्या होते हैं? These plastics have a medium modulus of elasticity. इसके अंदर जो है वो medium modulus of elasticity रहती है, and the elongations under a pressure which is completely disappears when the pressure is to be removed. Now the third, which is the soft plastics. ये अब soft plastics जो है वो क्या होता है? These plastics have a low modulus of elasticity. ये जो plastics रहते हैं वो low modulus of elasticity के होते हैं, and the elongations under the disappears are slowly when the pressure is to be removed. And the fourth, which is the elastomers. अब elastomers क्या होते हैं? These plastics are soft and elastic material with a low modulus of elasticity. They deform considerably under the load at the room temperatures and return their original shapes when the load is to be released. The extensions can be range up to 10 times their original dimensions. Now the properties of the plastics is that the following are the properties, or the common kind of the most of the properties of the plastic is that they are light in the weight. वो weight के अंदर काफ़ी lights होते हैं, right? Second, which is they are the good resistance of the most of the chemicals. वो जो है वो काफ़ी सारे chemical के जो है वो अच्छे resistance होते हैं. They have a high electrical strength, वो काफ़ी अच्छी होती है. गुड corrosion resistance होते हैं. प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड टू अप एनी डिज़ायर्ड शेप एंड साइज. प्लास्टिक को जो है हम लोग किसी भी शेप और साइज़ में हम लोग मोल्ड कर सकते हैं. दे कैन बी मेड द ट्रांसपेरेंट इन द कलर. वो काफ़ी कलर्स और ट्रांसपेरेंट मोड में बनाए जा सकते हैं. दे आर चिप्स एंड कंपेयर्स टू द मेटल के कंपेरिजन्स में वो काफ़ी कम दाम में पाए जा सकते हैं. ऑल द ऑपरेटर्स लाइक द ड्रिलिंग ऑपरेशंस लाइक द ड्रिलिंग, शोइंग्स, पंचिंग्स कैन बी डन ऑन द प्लास्टिक. ये काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो है वो प्लास्टिक के ऊपर किए जा सकते हैं. द पेंटिंग एंड द पॉलिशिंग इज़ नॉट नेसेसरी. इसके अंदर जो है वो पेंटिंग और पॉलिशिंग करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है, राइट. दिस प्लास्टिक इज पोजेस द एक्सेलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस प्रॉपर्टी. इसके अंदर जो इंसुलेशंस की बहुत अच्छी जो है प्रॉपर्टी पाई जा सकती है. द प्लास्टिक विच इज़ हैव अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ एवरेजिंग which is being from the 1.3 to 1.40. Now the advantages of the plastic over the other materials or disadvantages. So advantages की हम लोग बात करें तो it can be molded into a finished product at a relatively low cost. काफ़ी कम दाम पे जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर उसको ढाला जा सकता है कंपेयर टू द मशीनिंग एंड द फैब्रिकेशन कॉस्ट ऑफ द वुडन्स एंड द मेटल्स. अगर लकड़े और मेटल की बात करो तो उसको कम कोस्ट पे जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ढाला जा सकता है. दे आर रेजिस्ट दी केमिकल. वो केमिकल को रेजिस्ट करते हैं. उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू उसके वेट रेशियो के अगर कंपेयर करें तो. इट डज़ नॉट हैव अ रस्ट लाइक द आयरन. उसके ऊपर जंक नहीं लगता है. दे आर दी नॉन कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. दे आर द लाइट इन द वेट एंड दे आर ईजी टू फैब्रिकेट. उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो फैब्रिकेट किया जा सकता है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक्स? इट हैज़ अ लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसके अंदर जो है वो एक तरीके के लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इसके अंदर पाई जा सकती है. इट डज नॉट रिलायबल विथ रिस्पेक्ट टू दी वेदरिंग, राइट. ये एक तरीके से वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो रिलायबल नहीं होता है. जैसे मेटल जो है वो रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू वेदर, जो प्लास्टिक है वो अकॉर्डिंग टू वेदर जो है इतना रिलायबल नहीं है. ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर जो है वो
इतना फेवरेबल कंडीशंस में नहीं रहता है। नाउ द मोल्डिंग कंपाउंड्स। तो मोल्डिंग कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और किसको प्लास्टिक्स जो है वो उसके क्या मोल्डिंग कंपाउंड। FRP द फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट मोल्डिंग कंपाउंड्स विच इज कंसिस्ट ऑफ द रेजिन मैट्रिक्स। इसके अंदर जो है वो रेजिन मैट्रिक्स जो है पाए जा सकते हैं विथ अ शॉर्ट रेंडमली डिसअपियर्ड फाइबर्स के साथ, सिमिलर टू दोज विच इज़ यूज्ड इन दी प्लास्टिक मोल्डिंग। जो प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर पाए जा सकते उसके काफ़ी सिमिलर्स होते हैं। तो मोस्ट मोल्डिंग कंपाउंड्स फॉर कंपोजिट्स प्रोसेसिंग आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो मोस्ट मोल्डिंग कंपाउंड्स है फॉर कंपोजिट प्रोसेसिंग्स आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, वो जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। सिंस दे आर डिज़ाइंस फॉर मोल्डिंग, वो जो है वो मोल्डिंग के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। दे इज़ मे बी अ कैपेबल ऑफ द फॉलोइंग, दे आर नॉट क्योर्ड प्रायर टू शेप द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के पहले उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। द क्योरिंग इज़ डन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फाइनल शेप्स, फाइनल शेप के बाद उसका जो है वो क्योरिंग जो है वो किया जाता है। सो दिस इज़ द मोल्डिंग प्रोसीजर ऑफ द प्लास्टिक। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग डिटेल में प्लास्टिक्स के जो टाइप्स है और प्लास्टिक की जो मोल्डिंग प्रोसेसेस है, काफ़ी सारी मोल्डिंग प्रोसेसेस आपने सुनी होगी, जैसे ब्लो मोल्डिंग हो गया, इंजेक्शंस मोल्डिंग हो गया, कंप्रेसिव मोल्डिंग हो गया। ऐसी प्रोसेसेस को जो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक के जो पार्ट्स बनाए जा सकते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस होती है उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। This is all about the today's lecture. Please watch these lectures and write your enrollment number. Write your enrollment number after watching this video lectures into the comment sections, which is counted as an online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this